خواتین تحفظات بل منظور کرانے کا مطالبہ، کانگریس کی غیر مشروط تائید کی پیشکش، وزیر اعظم کو راہل گاندھی کا مکتوب۔ کانگریس کے قومی صدر راہل گاندھی نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس شروع ہونے سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی کو مکتوب لکھ کر اسی سیشن میں خواتین تحفظات بل پاس کرانے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ کانگریس اس کے لیے انہیں غیر مشروط حمایت دینے تیار ہے۔ راہل گاندھی نے وزیر اعظم کو اس سلسلے میں پیر کو لکھا خط ٹویٹر پر پوسٹ کر کے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ خواتین کو بااختیار بنانے کے حق میں ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ وہ سیاست سے اوپر اٹھ کر اسے عملی جامہ پہنائیں اور پارلیمنٹ میں خواتین تحفظات بل منظور کرائیں۔ کانگریس انہیں غیر مشروط حمایت دے گی۔ انہوں نے لکھا کہ راجیہ سبھا نے اس بل کو 9 مارچ 2010 کو منظور کیا تھا، لیکن ایک گزشتہ 8 برسوں سے کسی نہ کسی بہانے سے لوک سبھا میں اٹکا پڑا ہے۔ کانگریس صدر نے کہا کہ وزیر اعظم اپنی مختلف ریالیوں میں خواتین کو بااختیار بنانے اور عورتوں کو عوامی زندگی کے اہمیت دینے کے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ اسے پورا کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ لوک سبھا میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے اتحادیوں کی اکثریت سے اگر وہ اس کی حمایت کرتے ہیں تو یہ بل کو منظور ہونے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس بل کو منظور کرانے کا مانسون اجلاس سب سے زیادہ مناسب وقت ہے اور اگر اس وقت منظور نہیں ہو سکا تو آئندہ عام انتخابات سے پہلے ریزرویشن کا نفاذ نہیں ہو پائے گا۔ راہل گاندھی نے لکھا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے معاملے میں ہمیں پارٹی کی سیاست سے اوپر اٹھ کر ملک کو ایک ساتھ ہو کر پیغام دینا ہے اور اب تبدیلی کا وقت آ گیا ہے۔ خواتین کو اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں مناسب نمائندگی ملنی چاہیے کیونکہ ابھی ان کی نمائندگی بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین تحفظات بل کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور عوامی حمایت اکٹھا کرنے کے لیے کانگریس پارٹی نے 32 لاکھ افراد کے دستخط کرائے ہیں۔ کانگریس یہ دستخط آپ کے پاس بھیج رہی ہے اور بل کو منظور کرانے کے لیے آپ کی حمایت کی توقع کرتی ہے جس سے یہ پارلیمنٹ میں پاس ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ بل کی منظوری سے خواتین کو آئندہ لوک سبھا میں اہم حصہ داری کا موقع ملے گا۔ راہل گاندھی نے لکھا ہے کہ بی جے پی نے راجیہ سبھا میں اس بل کی حمایت کی تھی اور راجیہ سبھا میں اس وقت کے اپوزیشن قائد ارون جیٹلی نے اس وقت کہا تھا کہ یہ تاریخی اور یادگار لمحہ ہے۔ اس کے بعد کانگریس اس بل کے تئیں اپنا عزم و ارادہ ظاہر کرتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ بی جے پی اب کچھ اور سوچ رہی ہے، جبکہ 2014 کے عام انتخابات کے منشور میں یہ اس کا ایک اہم وعدہ تھا۔ کانگریس صدر نے کہا کہ اس انقلابی بل کو لے کر شک ظاہر کرنے والے اپنی پارٹی کے ارکان کو آپ پنچایت اور کارپوریشن کی سطح پر خواتین نمائندگی کی کامیابی اور شراکت کی مثال دے کر بتا سکتے ہیں اور وہ معاشرے اور ملک کی تعمیر میں فیصلے کرنے میں پوری طرح قابل ہیں۔ اسی لیے یہ بل ملک اور حکومت میں بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران پنڈال گر پڑا، 22 افراد زخمی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی مدناپور میں منعقدہ کسان ریلی کے دوران شدید بارش کی وجہ سے پنڈال گرنے 22 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ان میں سے چند شدید زخمی ہیں جنہیں مدناپور اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے لگاتار بارش ہو رہی تھی جس کے باعث ریلی کے مقام پر نصب اسٹیل کا اسٹرکچر کمزور ہو گیا۔ وزیر اعظم کو سننے کے لیے عوام کی کثیر تعداد جمع ہوئی تھی۔ عوام نے جوش میں آ کر اسٹرکچر پر چڑھنا شروع کر دیا تاکہ وہ بہتر طور پر نظر آ سکیں۔ یہ دیکھ کر وزیر اعظم نے انہیں تنبیہ کی اور بار بار نیچے اتر جانے کے لیے کہا۔ اچانک اسٹرکچر کے چند جوڑ ڈھیلے پڑ گئے اور وہ گر پڑا جس کے باعث چند افراد زخمی ہو گئے۔ ان میں سے بیشتر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس واقعے کے نتیجے میں بھگدڑ مچ گئی اور مزید چند افراد کو زخم آئے جن میں سے 3 شدید زخمی ہوئے۔ عہدیداروں کے بموجب جب وزیر اعظم اپنی تقریر کے درمیانی حصے میں تھے، یہ دیکھا کہ پنڈال گر رہا ہے، انہوں نے فوری ایس پی جی کے حملے کو جوان کے بازو ٹھہرا ہوا تھا، عوام اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کی ہدایت دی۔ مقامی بی جے پی یونٹ کے علاوہ مودی کا شخصی اسٹاف جن میں ان کے ڈاکٹر اور ایس پی جی کا عملہ بھی شامل تھا، زخمیوں کی مدد کرنے کے لیے حرکت میں آ گئے۔ زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نے اسپتال جا کر زخمیوں سے ملاقات کی اور علاج میں ہر ممکن مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ مہاراشٹر میں دودھ کے کسانوں کا احتجاج، ٹینکروں کو روک دیا گیا، سڑکوں پر دودھ بہایا گیا، کسانوں کے کھاتوں میں فی لیٹر 5 روپے راست منتقل کرنے کا مطالبہ۔
महाराष्ट्र के बड़े शहरों में ताज़ा दूध की सप्लाई को मुतासिर करते हुए आज हजार हाथ दूध के किसानों ने मुख्तलिफ मुतालबात की हिमायत में एहतजाज का आगाज किया है। बड़े शहरों बशमोल मुंबई, पुणे, नासिक और दीगर शहरों के लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से जाने वाली दूध के कई टैंकरों को रोक दिया गया है, जिसके बायस दूध की किल्लत पैदा हो गई है। स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन और महाराष्ट्र किसान सभा की जेर क़यादत किसानों के ग्रुपों की जानिब से फी लीटर दूध पर 5 रुपए की सब्सिडी और मस्का मिल्क पाउडर पर GST में छूट के अलावा दीगर मुतालबात को मनवाने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। अमरावती के करीब दूध की एक टैंकर को नजर आतिश कर दिया गया है, जबकि दीगर मुकामात पर कारकुनों ने मिल्क अभिषेकन के जेर उन्वान अलामती एहतजाज किया। इस दौरान चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने एहतजाज को नामंजूर कर दिया और कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन ने आज दूध की हुसूलियाबी को रोकने और एहतजाज की हिमायत का फैसला किया है। रियासती हुकूमत ने कोऑपरेटिव्स के लिए दूध की बरामद पर फी लीटर 5 रुपए और मिल्क पाउडर की बरामद फी किलो 50 रुपए देने का ऐलान किया है। ताहम मिस्टर सिटी ने इस पर ये कहते हुए एतराज किया है कि इससे सिर्फ ड्राइवरों और सियासतदानों को मदद मिलेगी जो ड्राइवरों पर कंट्रोल करते हैं। उन्होंने दूध के किसानों के खातों में फी लीटर बराह रास्त 5 रुपए डालने का मुतालबा किया। सिटी की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि वो इस मसला हुकूमत के लिए बातचीत के लिए तैयार है। हुकूमत SSS के साथ बात करना नहीं चाहती। अगर हुकूमत हमारा मुतालबा नजरअंदाज करती है, एहतजाज को जारी रखा जाएगा। एहतजाजियों की जाबिन से मुख्तलिफ मकामात पर दूध के टैंकरों को रोक देने और बतौर एहतजाज सड़कों पर दूध बहा कर टैंकरों को खाली करने की इत्तलात मौसूल हुई है। ख्याल रहे कि मुंबई में रोजाना तकरीबन 55 लाख दूध के पैकेट्स फरोख्त किए जाते हैं। रायजोशी ने कहा कि चूंकि रियासती हुकूमत दूध पैदा करने वाले किसानों के मुतालबात को नजरअंदाज कर रही है, इसलिए वो एहतजाज पर मजबूर हुए हैं। दूध को जाया करते हुए हम खुश नहीं हैं, लेकिन हुकूमत ड्राइवरों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और किसानों के मुतालबात पर गौर नहीं कर रही है। ये उन्होंने मजीद कहा कि दीगर तरीकों से जब हुकूमत को कायम नहीं किया जा सका तो हम मजबूरन एहतजाज कर रहे हैं। सड़कों पर गड्ढों से अमवात MNS का एहतजाज। PWD ऑफिस में तोड़फोड़, मुताल्लिका अहदेदारों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। राज ठाकरे की जेर क़यादत महाराष्ट्र नौनरमा सेना MNS के अरकान ने सीवन और पानवेल के दरमियान तवील पट्टी पर गड्ढों पर बरहमी जाहिर करते हुए नई मुंबई से मुत्तसिल एक सरकारी दफ्तर पर हमला कर दिया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह से ताहाल थाने इलाके से मुत्तसिल गड्ढों वाली सड़कों पर हादसों के बाइस 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुतासिरीन गड्ढों की वजह से तवाज़ुन खोकर गिर पड़े और उनकी 2 व्हीलर गड्ढों की जर्द में आई थी। MNS के कारकुनों ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के दफ्तर वाक़े तरबे पर हमला किया और दावा किया कि सीवन पानवेल सड़क पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे आने जाने वालों की जिंदगियों को खतरा लाहक है। एहतजाजियों ने नारे लगाए और दफ्तर के साजो सामान को नुकसान पहुंचाया। कुर्सियां फेंकी, कपबोर्ड उखाड़ दिए और खिड़कियों के आईने, कंप्यूटर टर्मिनल, CPU और प्रिंट्स को नुकसान पहुंचाया। MNS के कारकुनों ने शिवसेना के वजीर उमूर एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी और सड़कों की खराबी हालत के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। MNS ने कहा कि सड़कों पर गड्ढों के बाइस अमवात के मामलात में जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। APMC पुलिस स्टेशन के एक ओहदेदार ने कहा कि एहतजाजियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नवी मुंबई MNS यूनिट के सदर गजनान काले ने कहा कि अगर अवाम सड़कों की खराब हालत की वजह से मरते रहे तो MNS इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम देती रहेंगी। अगर सड़कों की मरम्मत न की जाए तो हमारा आइंदा निशाना रियासती सेक्रेटरी होगा। इस वाक़े पर रद्दअमल जाहिर करते हुए राज
ठाकरे ने कहा कि अगर हुकूमत गड्ढों को नहीं देख सकती तो कम अज कम इस एहतजाज को देखें। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के दफ्तर पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हफ्ते को पीडब्ल्यूडी वजीर चंद्रकांत पाटिल गड्ढों के 22 अमवात के लिए इस वक्त मंजर पर आए थे, जब उन्होंने कहा कि इस तरह के एक वाक़ये में किसी मौत पर आप बात करते हैं और आप इन दूसरे 5 लाख अफराद को भूल जाते हैं जो इसी सड़क से सफर करते हैं। आप सारा इल्जाम सिर्फ सड़कों की खराब हालत पर डालते हैं। MSN ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस पर हमला कांग्रेस के एहतजाज के एक दिन बाद किया है। कांग्रेस ने कल आओ गढ़े गुने के उन्वान से एहतजाज मुनज़्ज़म किया था। कांग्रेस ने शिवसेना के ज़ेरे क़यादत पर यहाँ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर मानसून के लिए मुनासिब तैयारी न करने का इल्जाम आयद किया है। मुस्लिम जमात के रिमार्क पर राहुल गांधी खामोशी तोड़ें। कांग्रेस की इंतशार पसंद सियासत से मुल्क को शदीद नुकसान, मरकज वजीर प्रकाश जावड़ेकर का बयान। PDI हुक्मरान बीजेपी ने आज फिर एक मरतबा राहुल गांधी के इन मुबैना रिमार्क्स पर शदीद तनकीद की, जिसमें कांग्रेस को मुस्लिम जमात करार दिया गया था। बीजेपी ने इस रिमार्क से पता चला है कि कांग्रेस फिरके परस्त और इंतशार पसंद पार्टी है। नई दिल्ली के बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, राहुल गांधी से इस्तिफसार किया कि वो आगे आएं और अपने रिमार्क्स पर वजाहत करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इंतशार पसंद सियासत ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी ने इन रिमार्क्स पर राहुल गांधी से खामोशी तोड़ने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एक अखबार ने रिपोर्ट दी है कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने इतवार को कहा था कि राहुल गांधी जानिबदारी बन गए हैं और गुजरात और कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान जाहिर करदा इनका ब्रह्मवादात किया गया है। इंतखाबात के बाद राहुल गांधी मुसलमानों की वफादार बन गए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी के रिमार्क्स से पता चलता है कि कांग्रेस एक फिरके परस्त जमात है। कांग्रेस की खुशामदाना पॉलिसी ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक इंतशार पसंद नजरियात रखने वाली जमात है। उन्होंने निशानदही की कि 1934 के सिर्फ एक वाक़े में 3000 सिखों का कत्ल किया गया था, जिसे कांग्रेस के कायदीन ने इस कत्ल आम को दुरुस्त करार दिया था। इसी तरह साल 1980 में भागलपुर फसादात में कई मुसलमानों के कत्ल के मुनासिब तहकीकात तक नहीं की गई। जावड़ेकर ने शाहबानू तनाज़े का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी के दौरे वज़ारत उज़्मा में मुल्क के दस्तूर को तब्दील किया गया था। अवाम के सामने कांग्रेस का मौक़िफ़ खुलकर सामने आ गया है। जावड़ेकर ने कहा कि क्यों इस मामले पर राहुल गांधी खामोशी साध लिए हैं, वो क्यों सामने आकर वजाहत नहीं करते। जावड़ेकर ने दावा किया कि कांग्रेस ने अक़लियती सेल के सदर नदीम जावेद ने राहुल गांधी के रिमार्क्स को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है। कांग्रेस मुसलमानों की जमात नहीं है। जावड़ेकर ने कहा कि क्यों राहुल गांधी तलाक सलासा के मामले में खुलकर सामने नहीं आते। अपोजिशन जमात सिर्फ मुस्लिम मर्दों की जमात है, लेकिन राहुल गांधी ने आज वजीर आजम से ख्वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को पार्लियामेंट के मानसून सेशन में मंजूर करवाने का मुतालबा कर रहे हैं।